જય અવધૂત. ફેસબુકના માધ્યમ દ્વારા દર ગુરુવારે પૂજ્યશ્રીની વિચાર ગંગાનો આપણે સૌ કોઈ લાભ લઈ રહ્યા છીએ. જ્ઞાન અને ભક્તિનો લાહવો આ કઠિન સમયમાં પણ આપણને મળી રહ્યો છે. સાથોસાથ બહુજન હિતાય બહુજન સુખાય વિવિધ સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ પણ આ મહામારી દરમિયાન ચાલુ રહી. પૂજ્યશ્રીના માર્ગદર્શન હેઠળ છેલ્લા 54 દિવસોમાં 49,800 જેટલા ફૂડ પેકેટોનું વિતરણ થયું, જેનો લાભ બિલ્લીમોરા તેમજ આજુબાજુના વિસ્તારના જરૂરિયાતમંદ લોકોએ લીધો. હાલની પરિસ્થિતિ સાનુકૂળ થતાં ફૂડ પેકેટની સેવાને વિરામ આપ્યો છે, છતાં જરૂર પડીએ સેવા ફરી ચાલુ કરવામાં આવશે. નવનાથ ધામ દ્વારા પ્રેમ અને નિષ્ઠા સાથે કરેલ સેવા કાર્યને સદા સર્વદા જન સમુદાય અવશ્ય યાદ કરતા રહેશે. ફૂડ પેકેટના વિતરણમાં પણ અલગ અલગ પ્રકારની વાનગીનો આસ્વાદ ગુરુ મહારાજે અપાવ્યો. પાઉંભાજીથી લઈને પ્રેમ રસ થાળ જેવા વૈવિધ્યસભર ફૂડ પેકેટોનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું. આપણા ધૃતિમાન નાથ સંપ્રદાયે ભૂખ્યાને અન્ન અને તરસ્યાને પાણી આપી સૌને તૃપ્ત કર્યા છે. વળી પૂજ્યશ્રીના માર્ગદર્શન હેઠળ મા વિમલા જનસેવા ટ્રસ્ટ દ્વારા દેવસર, તલોદ અને વલોટી ગામમાં 2800 કિલો શાકભાજી જેવી કે વેંગણા, બટાકા, ટામેટા, ભીંડા, દૂધીની 835 કીટોનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું. લોકડાઉનના સમય દરમિયાન ફરજ બજાવતા પોલીસકર્મી, મેડિકલ સ્ટાફ અને જરૂરિયાતમંદ લોકોને વિટામિન સી યુક્ત એનર્જી ડ્રિંકના 800 જેટલા ગ્લાસોનું વિતરણ થયું. વળી ફૂડ પેકેટ વિતરણ કરનાર સ્વયંસેવકોનું મેડિકલ ચેકઅપ પણ ટ્રસ્ટના સૌજન્ય દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. કોરોનાના મહામારીમાં પૂજ્યશ્રીએ મુખ્યમંત્રી રાહત ફંડમાં 1,01,111 રૂપિયાનું યોગદાન આપ્યું છે, જે સાચે જ સરાહનીય છે. મહામારી દરમિયાન આરએસએસ એટલે કે રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ જે અનાજ સામગ્રીના કીટોનું વિતરણ કરે છે, તેમને પણ 150 કિલો ચોખાનું યોગદાન પૂજ્યશ્રીએ આપ્યું છે. આ કાર્યમાં અનેક નાથ ભક્તોએ આર્થિક રીતે તેમજ વસ્તુના રૂપે સહાયતા કરી છે. મરી મસાલા, અનાજ, શાકભાજી કે ઘાસચારાના રૂપે જેમણે પણ યોગદાન આપ્યું છે, તેમનો મા વિમલા જનસેવા ટ્રસ્ટ હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરે છે. નવનાથ તેમજ પૂજ્ય દાદાશ્રીની કૃપા સૌ પર બની રહે તેમજ તેઓ સદા તંદુરસ્ત અને સુખી રહે એવી પ્રાર્થના. સત્સંગના અંતે દાતાઓના નામનું વાંચન પૂજ્યશ્રી કરશે અને આશીર્વાદ આપશે. લોકડાઉનના સમયમાં હાલ પ્રેસ બંધ છે, માટે શ્રદ્ધામય પુરુષાર્થનું પીડીએફ સ્વરૂપે વિતરણ થઈ રહ્યું છે. આ પીડીએફ આપને વિચાર ગંગાના વોટ્સએપ ગ્રુપ દ્વારા પહોંચાડવામાં આવી છે. છતાં કોઈ કારણોસર આપને આ પીડીએફ ન મળ્યું હોય તો આપના વોલેન્ટિયર મિત્રનો સંપર્ક અવશ્ય સાધવો, અથવા તો અમને પણ તમે સંપર્ક સાધીને આ પીડીએફ મેળવી શકો છો. હાલ લોકડાઉન 4 ચાલી રહ્યું છે, તો આપણે સૌ નિયમોનું પાલન કરતા રહીએ. ફેસબુક અને વોટ્સએપના માધ્યમથી આશ્રમની વિવિધ સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓથી આપ માહિતીગાર થતા રહેશો. સત્સંગનો લાભ પણ આપણને મળી રહ્યો છે. હવે પૂજ્યશ્રીને નમ્ર વિનંતી છે, આજની વિચાર ગંગા પ્રવાહિત કરે. જય અવધૂત. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा. या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. सच्चिदानंद सद्गुरु श्री सानेनाथ गुरु मच्छिंद्रनाथ की जय. आनंदी लाल की जय. यही हमारे सबके हृदय में प्रेम स्वरूप में
और आनंद स्वरूप में उपस्थित ऐसे सद्गुरु के चरणों में मेरे साष्टांग प्रणाम। एवं जो भी नाथ भक्त और सनातन धर्म के धर्मप्रेमी भाई बहन जो फेसबुक के माध्यम से गुरुवार का प्रवचन सुन रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से गुरुवार के दर्शन कर रहे हैं और फेसबुक के माध्यम से ही अपने गुरुवार की नियमित आराधनाएं कर रहे हैं, ऐसे सभी भक्तों को मेरा जय उदूत, जय जय मच्छिंद्र समर्थ और आदेश। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन 4 की शुरुआत 2 दिन पहले से हुई। केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने लॉकडाउन 4 में कई छूट छाटे राष्ट्र के नागरिकों को दी है और उसी आदेशों का पालन करते हुए हम सब ये महामारी में सुरक्षित रूप से हमें स्वयं को और हमारे साथ साथ सर्वस्व को सुरक्षित रखने की एक प्रयास कर रहे हैं। और वही प्रयास के रूप में हम सब घर में बैठे हुए हैं और जब जब हमें आवश्यकता हो तब निर्धारित समय में हम अपने जो भी कार्य है वो बाहर जाके पूर्ण करके वापस हमारे घर में आ रहे हैं। यानी लॉकडाउन 4 की शुरुआत हुई तो उसका एक अर्थ हुआ कि वायरस के सामने की मानव और वायरस के बीच में जो लड़ाई है शायद और थोड़ी लंबी चलने वाली है, लेकिन हमारा अध्यात्म, हमारा धर्म और हमारी आराधना उसमें किसी भी प्रकार का खंडन करते हुए हम नित्य नियम से घर में बैठे ही अनुष्ठान करेंगे और फेसबुक के माध्यम से गुरुवार के प्रवचन सुनेंगे। जब हम सब घर में बैठे हुए हैं तो पिछले गुरुवार को ही मैंने कहा था कि संयम से रहे और सबके साथ प्रेम पूर्वक रहे, क्योंकि प्रेम ही परमात्मा का स्वरूप होता है। प्रेम ही जीवन का प्राण होता है और प्रेम ही जीवन का अंतिम सत्य और जीवन का अंतिम तथ्य होता है। बिना प्रेम के हम न तो कभी किसी से जुड़ सकते हैं और ना ही कभी जीवन में सुख और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में, सामाजिक जगत में और वैश्विक जगत में एक और एकमात्र प्रेम तत्व को परम पूर्ण तत्व कहा गया है और यही परम पूर्ण तत्व को जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें समझना भी है और हमें जीना भी है। और इसीलिए जब हमारा प्रेम परिशुद्ध हो जाए, जब हमारा प्रेम पूर्ण रूप से तात्विक हो जाए, तब वह प्रेम परमात्मा की भक्ति कहलाता है। लेकिन जब तक हमारा प्रेम सात्विक न हो, जब तक हमारा प्रेम तात्विक और वास्तविक न हो,
तब तक वह प्रेम किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में या किसी महत्वाकांक्षा में रखा हुआ मोह कहलाता है। और इसीलिए हमें प्रेम की पवित्र भावना को वस्तु, व्यक्ति और महत्वाकांक्षा की ओर आकर्षित न करते हुए परमात्मा, धर्म और धर्म से हुए कर्तव्य की ओर गुरुत्वाकर्षित न कर देना है। प्रेम के विषय में अनेक अनेक व्याख्याएं हुई है, अनेक अनेक व्याख्याएं हमने पढ़ी भी है, लेकिन जहां अनुभव से प्रेम की व्याख्या हो वही व्याख्या श्रेष्ठ कहलाती है। और इसीलिए शास्त्र ने भी कहा है कि प्रेमेव परमेशो अस्ति, कि प्रेम वो परमात्मा का स्वरूप है। और वहां ही कहा गया है कि प्रेमेव परमेशो अस्ति, कि प्रेम वह परमात्मा का स्वरूप है। और इसीलिए जो आनंद स्वरूप दकः, कि प्रेम वो आनंद स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है, और इसीलिए प्रेम वो आनंद स्वरूप है। जड़ो वा चेतनो वापि, कि जहां जड़ और चेतन में हमारी प्रेम दृष्टि से हम परमात्मा को देखें, हम आनंद स्वरूप को देखें, प्रियताम याति प्रमेतः, कि वहां हम शुद्ध रूप से उसके साथ जुड़ जाते हैं। ईश्वर प्रति श्रद्धा, ईश्वर प्रति प्रेमोति श्रद्धाया दर्शनात् प्रति ध्रुवम, कि जहां हमारा वही प्रेम ईश्वर की ओर चला जाए तो वही प्रेम में हमें श्रद्धा के दर्शन होते हैं, या श्रद्धा में हम परमात्मा को देख सकते हैं। और इसलिए एक सिद्धांत वहां बन जाता है, आत्मवत सर्वभूतेषु दृष्टिकोण भविष्यति, कि आत्मवत सर्वभूतेषु का दृष्टिकोण परमात्मा में प्रेम रखने से हमारा बनता है। तो यह वाक्य रचना हमारे शास्त्रों ने दी है कि प्रेमेव परमेशो अस्ति, कि प्रेम परमात्मा स्वरूप ही है। और जड़ और चेतन में भी हमें उसे ही देखना है, और परमात्मा के प्रति हमारा प्रेम बह जाए तो दृष्टिकोण आत्मवत सर्वभूतेषु का हो जाता है। यानी आप सोचिए कि प्रेम से ही जीवन है, और वही जीवन जगत कहलाता है। और इसीलिए ही हमारे भारत के सन्यासी, प्रखर सन्यासी, जिन्होंने विश्व में परिभ्रमण करते हुए सभी जीव मात्र को सनातन धर्म के प्रति जागृत किया। हमारे भारत की वैदिक परंपरा क्या है, जिसका अनुभव पाश्चात्य देशों को करवाया, और ऐसी महान विभूति युग पुरुष जिन्हें हम स्वामी विवेकानंद से जानते हैं। और स्वामी विवेकानंद ने तो कहा है कि प्रेम, प्रेम और प्रेम, प्रेम ही सब कुछ है। क्योंकि प्रेम विकसित होता है, प्रेम प्रत्येक जगह में बहने लगता है, प्रेम प्रत्येक के हृदय में जाके प्रवाहित हो जाता है। लेकिन जो अप्रेम रखे, यानी जो स्वार्थ रखे, वो जीवन में कभी भी जीवन प्राप्त नहीं कर सकते। और उन्होंने वहां कहा है कि जो प्रेम करता है वो जी जाता है, जो मन में स्वार्थ रखता है
वो मर जाता है। प्रेम लेना और प्रेम देना, यही जीवन का नियम होता है। अभी आप सोचिए कि जो सन्यासी है, जो वैरागी है, जिन्होंने अपनी मायाओं को वस्तु से, व्यक्ति से, महत्वाकांक्षा से विरक्त कर लिया है, ऐसे परम पुरुष प्रेम की भाषा बोलते हैं। ऐसे परम पुरुष का आचरण प्रेममय होता है। और जिन्होंने अलक्ष्य की आराधना कर दी, ऐसे ये महापुरुष स्वामी विवेकानंद, जो एक बार नहीं जो 3 बार बोलते हैं प्रेम प्रेम और प्रेम, प्रेम ही सब कुछ। अब आप समझिए कि जहां स्वामी विवेकानंद ने प्रेम प्रेम और प्रेम शब्द कह के मानो हमारे हृदय में प्रेम शब्द का जागरण किया है, या प्रेम को परमात्मा के स्वरूप में प्राण प्रतिष्ठित कर दिया है। लेकिन जब ऐसे महापुरुष अपने मुख से कुछ वचन कह दे या कुछ प्रवचन कह दे, तो यह लिखी लिखाई बातें नहीं होती, अपने अनुभव का वचनामृत होता है। एक समय में जब स्वामी विवेकानंद स्वामी रामकृष्ण परमहंस की आज्ञा लेके तप अनुष्ठान के लिए निकल पड़े और हिमालय की गुफा में जाके उन्होंने प्रखर से प्रखर, कठोर से कठोर तप किया। काफी समय तक वो तप में लीन रहे, और जब वो तप में लीन रहे तब उनके भीतर से उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी ने उन्हें आज्ञा दी कि बेटा उठो, तपाचरण बहुत हुआ, योगाचरण बहुत हुआ, ज्ञान प्राप्ति भी बहुत हो गई, तुम स्वयं शक्ति के पुंज हो। अब तपाचरण छोड़ के विश्व परिभ्रमण करते हुए दुखियों के दुखों को समझो और उसे दूर करो। स्वामी विवेकानंद तप में तद्रूप हो चुके थे और स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु से बात की अंतर्ध्यान होके, और उन्हें उत्तर दिया कि नहीं, मुझे तप से नहीं उठना है, मुझे योग साधना से नहीं उठना है। योग साधना के द्वारा जो मैं अमृत पी रहा हूं, इस निजानंद से मुझे मुक्त नहीं होना। तब वापस स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने वापस उन्हें कहा कि बेटा उठो, अब यह सबका त्याग करो और बहुजन हिताय के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करो। तब स्वामी विवेकानंद ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस को प्रश्न किया था कि अगर मुझे वापस दुनिया की मोहमाया में ले जाना था तो यहां इतनी दूर, इतनी ऊंचाई पे मुझे लाके मेरे पास तप क्यों करवाया, साधना क्यों करवाई, मुझे संन्यास क्यों दिया? तब स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि जब तपाचरण हो जाता है, शक्तियां प्राप्त हो जाती है, तब अधिक से अधिक तपाचरण करने से अहंकार पैदा होता है और परमात्मा की शक्ति बांटने से बढ़ती है, परमात्मा की शक्तियों को लुटाने से शक्ति बढ़ती है। यानी तप का अंतिम लक्ष्य प्रेम होता है, और प्रेम जो तूने प्राप्त किया है वही प्रेम दूसरों को बांट दो, क्योंकि ज्यादा समय तक ये शक्तियां संग्रहित रहेगी तो यह अहंकार में पलट जाएगी, इस जीवन का कोई अर्थ न होगा। और वहीं स्वामी विवेकानंद उठ खड़े हुए, अपनी तपश्चर्या को छोड़ते हुए बहुजन हिताय के लिए परिभ्रमण करने की शुरुआत उन्होंने कर दी। और जो दुखी आते थे
उसे दवा भी देते थे, जो भूखे आते थे उसे खाना देते थे, और जो अपने मन में कष्ट लिए आते थे उसको आत्मसंतोष वो दे देते थे। और साधना कम करते हुए कर्मयोग को, सेवा योग को उन्होंने प्राधान्य दे दिया। बहुत समय तक सेवा करते रहे, और उसी समय में काफी साधु समाज में दंभ फैला था, साधु निष्क्रिय हो रहे थे, सबका संन्यास व्यर्थ हो रहा था। बड़े बड़े आश्रम बनाने में साधु सन्यासी लगे हुए थे, और स्वामी विवेकानंद परिभ्रमण करते हुए प्यार लो, प्यार दो, प्रेम बांटने में लगे हुए थे। कई सन्यासियों ने उनको आके पूछा कि सन्यासी तो तप करता है, अनुष्ठान करता है, अपने योग को साधता है, तो ये सब छोड़ते हुए आप ये क्या कर रहे हो? तब स्वामी विवेकानंद ने कहा कि तप, अनुष्ठान और योग मार्ग में चलते हुए सन्यासी के पास बहुत महत्व के 3 काम होते हैं, जो अगर सन्यासी न करे तो उसका सन्यास विफल हो जाता है। तब साधुओं ने कहा कि आप ये करेंगे तो परमात्मा की पूजा कौन करेगा, परमात्मा की साधना कौन करेगा, परमात्मा को प्रसन्न कौन करेगा? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि प्रेम ही मेरी मंजिल, प्रेम ही मेरी पूजा। कि अपना कर्तव्य, अपनी सेवा, यही पूजा है, यही प्रेम है, यही साधना है। इसलिए आपके पास अगर कोई भूखा आ जाए तो उसे खिला दो, कोई दुखी आ जाए तो उसे दवा दे दो, और हृदय में कोई कष्ट लेके आ जाए तो उसे आश्वासन दे दो। ये अगर 3 काम आपने कर दिए तो परमात्मा अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। और परमात्मा अगर प्रसन्न हो गए तो हिमालय में जाके तप करने की क्या जरूरत है? परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए पूजा की क्या जरूरत है? कर्तव्य ही पूजा बन जाती है, धर्म ही अनुष्ठान बन जाता है, और व्यक्ति के हृदय में रहा हुआ परमात्मा वो हमारा इष्ट बन जाता है। और यह सेवा से जो परमात्मा प्रसन्न होंगे वह पूजा से भी कभी ना हो पाएंगे। और ऐसा जब कहा तो साधुओं की आंखें खुली, सन्यासियों की आंखें खुली, और धीरे धीरे जो सन्यास मार्ग था, जो शिथिल हुआ जा रहा था, वो वापस चेतन बनते हुए। इसलिए आप देखिए कि प्रखर सन्यासी ने हमें सूत्र दिया, प्रेम देना और प्रेम लेना, यही जीवन का नियम होता है। और वही नियम को हमें भी हमारे जीवन में आचरण करना है। ईसा मसीह ने तो कहा था कि प्रेम को लुटाते चलो, स्नेह को लुटाते चलो। अगर आप अपने अंदर का प्रेम किसी से लुटाते चलेंगे तो परमात्मा आपको इतनी शक्तियां देगा कि वो शक्तियों से आपका जीवन समृद्ध हो जाए। और ईसा मसीह का जीवन भी प्रेम देने में और प्रेम लेने में ही पूर्ण हुआ है। अमेरिका के विचारक खलील जिब्रान ने कहा था कि जीवन से अधिक बलवान मृत्यु है, और मृत्यु से भी अधिक बलवान प्रेम होता है। आप देखिए कि जीवन से अधिक बलवान कौन है? मृत्यु। मृत्यु को हम कभी हरा नहीं सकते, मृत्यु से हम कभी जीत नहीं सकते, मृत्यु का अस्वीकार हम कभी नहीं कर सकते। हमारे जीवन की प्रतिक्षण मृत्यु के मुख में जा रही है। हमारी जिंदगी जितनी भागती है, हमारी क्षण, पल और विपल जितनी भागती है, हमारा समय जितना दौड़ता है, तो वो दौड़ता हुआ समय अंत में जाके मुख के मुंह में समा जाता है। और हमारे जीवन को भय क्या है? मृत्यु से। हम सबसे जीत सकते हैं, मृत्यु से नहीं।
और इसीलिए उन्होंने कहा था कि जीवन से अधिक बलवान मृत्यु है और मृत्यु से अधिक बलवान प्रेम है। कि जीवन से अधिक मृत्यु है, मृत्यु को नहीं जीत सकते, लेकिन मृत्यु को अगर जीतना है तो आप प्रेम से जीत सकते हैं। और इसीलिए कहा है कि प्रेम से जियो। व्यक्ति जब मर जाता है तो अपने साथ कुछ नहीं ले जाता, उसने जो पाया है और जो स्थावर जो जिनसे इसने पाया है वो यहीं रह जाता है। लेकिन जब वो मरता है तब लोग कह जाते हैं कि ऐसा व्यक्ति लाखों में एक था जिसकी इस दुनिया को जरूरत थी। और इसीलिए आप देखिए कि राम ने मृत्यु के ऊपर विजय लिया था प्रेम से, कि आप मर जाओ लेकिन आपके जाने के बाद आपको लोग प्रेम से याद करें। यानी अमरता जैसी कोई अगर चीज हो, अमर पद अगर हो, तो वो प्रेम में है कि जहां आप मर जाओ लेकिन आपको लोग प्रेम से याद करें। लोग दो प्रकार से याद करते हैं, एक प्रेम से और एक तिरस्कार से। कई व्यक्तियों को तिरस्कार से आज याद किया जाता है, लेकिन कई महापुरुषों को प्रेम से याद किया जाता है। और मृत्यु को अगर जीता जा सकता है तो प्रेम से जीता जा सकता है। और खलील जिब्रान ने कहा था कि यह सब तथ्य मानवों को पता है, फिर भी मानव और मानव के बीच में सकिरणता की एक सीमा खींची गई, फिर भी मानव और मानव नहीं समझ रहा कि कौन बलवान है और किसे हमें प्राप्त करना है। यानी जब ऐसे महापुरुष अपने जीवन में हमें कुछ सार निकाल के दे जाए या अपने जीवन का कुछ नवनीत हमें दे जाए, तब हमें समझना चाहिए कि यह सार, यह नवनीत, यह अमृत काफी मंथन के बाद, अनुभव के बाद उनके अंदर प्रकट हुआ होगा। और इसीलिए प्रेम प्रेम और प्रेम, प्रेम ही जीवन है। लेकिन आप देखिए कि हमारा प्रेम कहां आकर्षित हो रहा है। आज हम सब जानते हैं और हम सब मानते भी हैं कि प्रेम परम पवित्र भावना है, प्रेम शुद्ध भावना है, प्रेम परिशुद्ध भावना है। लेकिन जो शुद्ध है, जो परिशुद्ध है, वो भी कभी अपवित्र हो सकता है। और इसलिए आप देखिए कि हमारा प्रेम कहां आकर्षित हो रहा है, हमारा प्रेम किसके संग में जा रहा है। क्योंकि संग से प्रेम भी अपवित्र हो सकता है। अभी हम यहां सोचेंगे कि प्रेम तो पवित्र भावना है, वो कैसे अपवित्र हो सकती है। तो मेरा ऐसा मानना है, क्यों नहीं पवित्र हो सकती। गंगा जल भी तो पवित्र है, गंगा में स्नान करने से लोगों के पाप धुल जाते हैं। शिव के मस्तक से गंगा की धार प्रकट हुई है, फिर भी जब कभी गंगा के नीर को मिट्टी का स्पर्श हो जाए तो क्या गंगा जल अशुद्ध नहीं हो जाता? गंगा जल का रूप और रंग नहीं बदल जाता? मिट्टी के संग में आने से, कीचड़ के संग में आने से गंगा का पानी भी दूषित हो जाता है। और इसीलिए अगर गंगा जल दूषित हो सकता है तो हमारा प्रेम जल किसी के संग में आने से दूषित हो सकता है। ये जो हवा चलती है, हवा भी शुद्ध है, लेकिन हवा अगर फूलों के बगीचे से चली जाए तो वो सुगंध देती है। लेकिन कहीं विष्ठा पड़ी हो, कहीं गंदगी पड़ी हो और उसके ऊपर से हवा चली जाए तो वो हवा प्रदूषण देती है।
तो हवा शुद्ध होने के बाद भी गंदगी के संग में आके हवा भी दूषित हो सकती है। लेकिन एक चीज है कि जो पवित्र है और जो दूषित हुआ है उसे शुद्ध किया जा सकता है। जैसे सोना पवित्र है, लेकिन जब वो जमीन से निकलता है तब उसमें दोष होता है, लेकिन उसका मूलभूत स्वभाव पवित्रता है। जो पवित्र है मगर दूषित हुआ है उसे शुद्ध किया जा सकता है। कई प्रक्रियाओं से उसे शुद्ध किया जा सकता है, और वो शुद्धिकरण का अर्थ ही होता है कि अपवित्र वस्तु से उसे मुक्त कर दिया जाए। पानी पवित्र है, पानी में शीतलता है, लेकिन अग्नि के संग में आने से, अग्नि के संग में आने से पानी की शीतलता उष्णता में बदल जाती है। लेकिन पानी का मूलभूत स्वभाव उष्णता है, शीतलता है। फिर भी अग्नि के संग में आने से पानी गर्म हो सकता है। अभी आप सोचिए, लेकिन गर्म हुए पानी को अगर वापस ठंडा कर दिया जाए तो वो शीतल भी हो सकता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि प्रेम भी पवित्र होने के बाद भी प्रेम भी दूषित हो सकता है, लेकिन किसके संग में आने से? किसी व्यक्ति के संग में आने से, वस्तु के संग में आने से, महत्वाकांक्षा के संग में आने से। आज हमारा प्रेम बह रहा है, किसी व्यक्ति में आकर्षित हुआ तो जब अगर प्रेम व्यक्ति में आकर्षित हो जाए तो वो वासना बन जाती है, तब वो मोह बन जाता है। और जब प्रेम मोहाधीन हो जाए तो व्यक्ति मोहांध हो जाता है। और उसके कई उदाहरण हमारे भागवत में भी मिलेंगे, हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी मिलेंगे, और हमारे खुद के जीवन में भी हमें मिलेंगे। अब देख सकते हैं कि धृतराष्ट्र राजा था, वो तो आंखों से अंध था, गांधारी की आंखें थी, फिर भी गांधारी ने आंखों के ऊपर पट्टी बांधी थी। ये महाभारत एक महाकाव्य है, हुआ होगा इतिहास में, पुरातन काल में भी वो घटनाएं घटी होगी, लेकिन महाभारत महाकाव्य है। महाभारत के सभी पात्र हमें जीवन में बोध देते हैं। और आप देखिए कि धृतराष्ट्र तो अंध था, उसकी आंखें ही नहीं थी, लेकिन गांधारी को तो दृष्टि थी। फिर भी गांधारी, धृतराष्ट्र के साथ रहते हुए गांधारी ने अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांधी थी। और वो पट्टी कौन सी थी? और वो पट्टी थी पुत्र मोह की पट्टी। देखते हुए भी उसकी आंखें पुत्र मोह में अंध हुई थी। यानी आंखों के ऊपर पट्टा बांधो या न बांधो, पुत्र मोह हमें देखते देखते ही आंखों से भी अंधा कर सकता है। और इसीलिए दुर्योधन ने इतने अत्याचार किए। दुर्योधन की दुर्भावनाएं थी। दुर्योधन आग्रह और स्वार्थ से जीता था, शकुनी के संग में था। गांधारी और धृतराष्ट्र सब कुछ समझ रहे थे, फिर भी अपने पुत्र को कभी भी उन्होंने योग्य सलाह और सूचना नहीं दी। और उसका परिणाम क्या हुआ कि दुर्योधन को खोना पड़ा। अपने दुर्योधन के साथ साथ 100 कौरवों को खोना पड़ा। दुर्योधन की में इतने मोहांध थे कि अपने 100 पुत्र को भी उसके पीछे गवा दिया, अपने स्वयं को गवा दिया। तो आप देखिए कि जब मोह किसी व्यक्ति के ऊपर आ जाए तो वह व्यक्ति योग्य है या अयोग्य, संस्कारी है या असंस्कारी, धार्मिक है या अधार्मिक, हमारी आंखें नहीं देखती। जिसमें हमें मोह हो वो हमेशा हमें सही ही लगता है। उसी प्रकार आप देखिए कि कई जिसको मोह था भरत में, और उसी कई ने राजा दशरथ से कहा कि राम को वनवास दे दीजिए, भरत को गादी दे दीजिए।
वो इतनी मोहांध थी कि वो कभी अपने पुत्र भरत को समझ नहीं सकी कि भरत क्या चाहता है। अपने अंदर का मोह किसी दूसरों के अधिकार के ऊपर अधिकार डाल दे, उस समय पे हमें जिसके ऊपर मोह हो वो क्या चाहता है वो हम कभी समझ नहीं सकते। और दशरथ राजा पुत्र शोक में, राम के जाने से पुत्र शोक में दशरथ मरे गए, फिर भी कैकेयी का मोह समाप्त नहीं हुआ। और आप देखिए कि अंत में परिणाम क्या हुआ कि अपने पति को भी खोया, भरत ने भी अयोध्या छोड़ी और भरत जाके वन में रहे, नंदीग्राम में भरत को भी गवाया और स्वयं अपने आप को भी कैकेयी ने गवाया। तो आप सोचिए कि व्यक्ति के ऊपर जब प्रेम हो जाए तो वह व्यक्ति के ऊपर का प्रेम हमें अंध बना देता है। वह व्यक्ति के ऊपर का प्रेम हमारी वाणी को मूक बना देता है। और जहां द्रौपदी की लाज लूटी जा रही थी, तब वहां द्रोणाचार्य जैसे गुरु भी वहां मूक बने हुए, क्योंकि उनको भी मोह था अपने पुत्रों के ऊपर, अश्वत्थामा के ऊपर। उन्हें भी मोह, उन्होंने भी हस्तिनापुर का अन्न खाया था, तो वहां उनकी वाणी भी वहां मूक हुई। धृतराष्ट्र स्वयं अंधे थे, फिर भी बार बार धृतराष्ट्र को कहा गया विदुर के द्वारा, भीष्म के द्वारा, फिर भी वो बधिर बना रहा कि कुछ भी हो, मगर दुर्योधन के बारे में वो सुन नहीं सकता। हमें जिस व्यक्ति के बारे में, जिस व्यक्ति के प्रति मोह हो, उसके विरुद्ध में हम कभी सुन नहीं सकते, उसके विरुद्ध में हम कभी देख नहीं सकते, उसके विरुद्ध में हम कभी बोल नहीं सकते। और इसीलिए कहा गया है कि व्यक्ति के ऊपर जब लग जाए तो वो मोह है। व्यक्ति के ऊपर जब हमारा प्रेम चला जाए तो वो प्रेम दूषित हो जाता है। वो चाहे हमारे संतान हो, हमारा पति हो, हमारी पत्नी हो, या हमारा परिवार हो, या हम जिसे किसे चाहते हो, उसके ऊपर जब हमारा प्रेम चला जाए तो वह प्रेम दूषित हो जाता है। और इसीलिए कहा है कि संसार क्या है? संसार में सभी संबंध स्वार्थ से जुड़े हैं कि आज मैं आपके काम आऊं, कल आप मेरे काम आओ, कोई आपके काम आए, इसीलिए आप आज अपना समय उसके साथ व्यतीत करते हो। तो व्यक्ति के ऊपर जब चला जाए तो वो प्रेम मोह बनता है, प्रेम वहां दूषित बन जाता है। प्रेम अगर किसी वस्तु के ऊपर चला जाए तो वो वस्तु में माया लगने से प्रेम लोभ में रूपांतरित हो जाता है। और जब प्रेम लोभ में रूपांतरित हो जाए तो सब कुछ छूटे, मगर व्यक्ति का लोभ नहीं छूटता। और इसलिए आप देखिए कि हमारे जीवन में हमें कई प्रकार के लोभ होते हैं, और उसमें से एक बहुत बड़ा लोभ होता है हमारी प्रतिष्ठा का लोभ। कि अगर आपको किसी ने प्रतिष्ठा दे दी तो प्रतिष्ठा का लोभ लग जाता है, और प्रतिष्ठा का जब लोभ लगता है तब वो प्रतिष्ठा चली जाए फिर भी हमारे अंदर का लोभ कभी जाता नहीं, हम भ्रम में जीते हैं। लोभ एक प्रकार का भ्रम है कि जिस वस्तु के ऊपर लग जाए वो आपकी हो जाए, इसके लिए आप प्रयत्न करते हो, और आपके पास से वो चली जाए फिर भी वो वस्तु आपकी है, ऐसा लोभ कभी नहीं जाता। इसलिए तो कहा जाता है कि आदमी जब मर जाए तो उसकी आत्मा मुक्त हुई या नहीं हुई, वो जानने के लिए कहा जाता है कि उसे जिस जिस चीज में उसे लोभ था उस चीजों को किसी को दान कर दिया जाए। वो जब मरे तो उसके साथ वो चीजें रख दी जाए। किसी व्यक्ति में उसका प्रेम था तो उस व्यक्ति को बुला लिया जाए, ताकि उसका आत्मा शरीर छोड़ सका, उस व्यक्ति को नहीं, उस वस्तु को नहीं। और इसीलिए शायद हमारी कायदे की परंपरा में एक नियम आया है, एक कायदा है कि जो मर जाए उसका नाम कभी हो जाता है, और जो नया है उसका नाम लग जाता है। यानी मरने वाले का नाम भी हमारी मिल्कत से
निकालने की एक प्रोसीजर है, जिसे कहकर नाम कमी कर डालो। जो मरे हुए हैं उसके नाम निकालो, जो नए वर्तमान में है उसे डाल दो। तो आप सोचिए कि व्यक्ति चला जाए लेकिन व्यक्ति का अधिकार मरने के बाद भी उस पर रह जाता है, उसका लोभ मरने के बाद भी ऊपर रहता है। और जहां लोभ रह जाए वहां आप समझिए कि एक बार जहां आपको लोभ लग गया वहां आप शिथिल हो जाते हो। एक दुकान थी, वो दुकान शहद बेचने की दुकान थी। शहद बेचने के लिए वो दुकान में जब शहद लाए, थोड़ा शहद जमीन के ऊपर पड़ गया, कुछ ही मिनटों में काफी प्रकार की मक्खियां आई और मक्खियां उस शहद के ऊपर बैठ गई। एक आई बैठी और मध चूसने लगी, चाटने लगी। उसको देख के दूसरी आई, वो भी चाटने लगी, तीसरी आई, वो भी चाटने लगी। देखते देखते क्या हुआ, मध तो खत्म हो गया, लेकिन जो मक्खियां मध में अंदर बैठी थी वो मध के साथ चिपक गई। इतने समय तक वो बैठी रही कि उसके सब पैर मध की चिकनाहट में चिपक गए। वो चाहे फिर भी वो न उड़ सकी और अंत में क्या हुआ, वो मक्खी उधर ही मर गई। आप देखिए कि ये कैसा मोह, कैसा लोभ है, जो वस्तु को प्राप्त करने के बाद भी और अति और अति और अति और अति में वो वहां का वहां वो स्थिर हो जाता है, वो निष्क्रिय हो जाता है। और इसीलिए कहा गया है कि प्रतिष्ठा का लोभ हमें जीवन में कभी नहीं जाता। प्रतिष्ठा अगर किसी को हो जाए और प्रतिष्ठा में अगर लोभ लग जाए, प्रेम लग जाए, तो हमारे प्रेम को वो दूषित कर देगा। हमारा प्रेम किसी महत्वाकांक्षा में अगर चला जाए तो वह महत्वाकांक्षा दिन प्रतिदिन बड़ी होती जाती है। आप देखिए कि सिकंदर कौन था? तो सिकंदर छोटे से राज्य के एक राजा था, लेकिन मुझे विश्व विजेता बनना है। पहले उसने ऐसा नहीं सोचा होगा कि मैं विश्व विजेता बनूं, मुझे एक राज्य को जीत लेना है। उसने जीता, महत्वाकांक्षा। मुझे मेरे आजू बाजू के राज्य को मुझे जीत लेना है, वो भी जीत ली। अब मुझे चक्रवर्ती बनना है, मेरे खंड में आए हुए राज्यों को मुझे जीतना है। उसमें भी वो जीता, महत्वाकांक्षा बढ़ती गई। और एक महत्वाकांक्षा बाद में उसकी बढ़ी कि मुझे विश्व विजेता बनना है। तो पूरे विश्व को विजयी करने के लिए सिकंदर भागता रहा। यानी जिसमें महत्वाकांक्षा हो वो व्यक्ति कभी भी जीवन में शांत नहीं रख सकता, वो अशांत हो जाता है। महत्वाकांक्षा दिन प्रतिदिन अति और अति बढ़ती जाती है। आज थोड़ी और कल और वो व्यापक हो जाती है। जो उसने जीता था उसे भी नहीं जी पाया और विश्व विजेता बनने के लिए निकला था, लेकिन यह भारत की भूमि में आके उसकी महेच्छा वो धूल में मिल गई, उसको यहां आके मरना पड़ा। तो आप देखिए कि जो जीता था उसे जीना था, अधिक जीतने की खुशी में जो पाया था उसके साथ भी नहीं जी पाया। तो महत्वाकांक्षा क्या होती है? जब हमारा प्रेम किसी महत्वाकांक्षा में चला जाए तो वो वासना बन जाती है, और वासना दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। वासना का अर्थ है वासना, वास और ना, कि जहां आप जाओ मगर उसमें बस न पाओ, और उससे आगे और उससे आगे आप करते ही जाओ, बढ़ते ही जाओ, लेकिन जो पाया है उसे आप उसमें आप न रह पाओ। वासना यानी बसना नहीं है, एक जगह पे नहीं बसती, वापस उधर से उठ के और कहीं जाती है, और अधिक और अधिक और अधिक, और पैसा कमाना और पैसा कमाना और पैसा कमाना। जो कमाया है उसे भी आप नहीं कमा सकते, और जब कमाया है उसे उपयोग करने का मौका है तो नहीं, ये अगर उपयोग कर दूंगा तो कल क्या होगा, और अधिक चाहिए। तो वासना वो एक जगह पे बसी नहीं रहती, वो अनेक घर बसा लेती है, और उसे कहा जाता है वासना। तो महत्वाकांक्षा में जब वासनाएं चली जाए तब जाके हमारा प्रेम वो दूषित बन जाता है। एक बार एक फकीर था, वो फकीर चला जा रहा था, रास्ते में उसे एक सोना मोहर मिली। वो फकीर ने सोना मोहर अपने जेब में रख ली। फकीर ने सोचा कि इसका मैं क्या करूंगा,
कुछ बात नहीं, कोई भिखारी आ जाए तो उसे मैं दे दूंगा। वो फकीर कड़ी धूप में चलता जा रहा था। सामने से कोई महारथी राजा अपने लश्कर के साथ आ रहा था। सामने से राजा आ रहा है, उसके सामने यह फकीर जा रहा है। फकीर का ध्यान अलक्ष्य में है, उसे तो पता भी नहीं सामने से कौन आता, वो चले जा रहा है। जब राजा जब आ रहे हैं तो आजू बाजू के लोग हट गए। आजू बाजू के जो दुकानें थी लोगों ने बंद कर दी और बाहर खड़े रह गए राजा के स्वागत के लिए। जो बीच में आ रहा था उसे सैनिक हटा रहे थे, लेकिन ये औलिया था, वो जा रहा था। फकीर आगे बढ़ता जा रहा था। सब लोगों ने फकीर को हटाने की कोशिश की, फकीर हटा नहीं, फकीर चला जा रहा। राजा रुक गए और राजा सोचने लगा कि ये कौन है, मैं आ रहा हूं फिर भी मेरे सामने आ रहा है, इसे रोका जा रहा है मगर रुक नहीं रहा है। क्या उसे पता नहीं कि मैं कौन? शायद उसे कुछ मेरे पास चाहिए, इसीलिए ये आ रहा है। ठीक है, उसे जो चाहे वो दे देता हूं, दान पुण्य हो जाएगा। राजा खड़ा रहा, फकीर नजीक से जा रहा। राजा ने फकीर से कहा कि ओ फकीर, क्यों चले जा रहे हो, रुकते क्यों नहीं? फकीर ने कहा मेरा काम ही चलना है, मैं कभी रुकता नहीं। तो कहां जा रहे हो? पता नहीं। अगर तुझे पता नहीं तो तुम कहां जाके अटकोगे? जहां तक ये सांस है वहां तक में जाओ। राजा को लगा फकीर को कुछ दे दूं। राजा ने कहा ये लो फकीर, मैं तुम्हें कुछ घोड़े दे दूं कि ताकि उसके ऊपर बैठ के तुम जा सको। फकीर ने कहा ये मुझे नहीं चाहिए। तो राजा ने कहा क्यों नहीं चाहिए? फकीर ने कहा जिसे जरूरत है उसे दे देना, लेकिन मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं। मैं कब से सोच रहा हूं क्या कि मेरे जेब में सोना मोहर है, ये मैं तुझे देना चाहता हूं। राजा कहे ऐसी तो बहुत सारी सोना मोहर मेरे पास पड़ी, तुझे कुछ चाहे तो मैं दे दूं। फकीर ने कहा चाह गई चिंता गई, अब ये मनवा बेपरवा। जिसे कुछ नहीं चाहिए वो सहन का सा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं स्वयं अपने आप में राजा हूं, लेकिन इतना लश्कर लेके तू कहां जा रहा है? उसने कहा राज्य के ऊपर विजय प्राप्त करने। अच्छा तो ठीक है, ये मेरे पास सोना मोहर है, मैं कब का ढूंढ रहा था कि कोई भिखारी मिले तो मैं उसे दे दूं। और राजा फकीर ने वो सोना मोहर उसके ऊपर डाली और कहा मुझे जरूरत नहीं है, मैं मांग नहीं रहा, मांगने तो तू जा रहा है। अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए तू दूसरे राज्यों के ऊपर चढ़ाई करने जा रहा है। भिखारी तो तू है, गरीब तो तू है। ले एक सोना मोहर मेरे पास पड़ी थी, ये मैं तुझे दे रहा हूं, अगर तेरे कुछ काम आ जाए। तब राजा की आंखें खुली और राजा ने कहा कि क्या मैं गरीब लगता? तब फकीर ने कहा तू गरीब है, जिसके पास कुछ न हो वो गरीब है। तेरे पास सब कुछ होते हुए भी तेरे पास कुछ नहीं है, इसीलिए दूसरों को मारने जा रहा है, इसीलिए तू हत्या करने जा रहा है। और इसलिए मैं कहता हूं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुझे चाहिए, ले सोना मोहर मैं तुम्हें दे रहा हूं। राजा ने दोनों हाथ जोड़े और क्षमा मांगी। और शायद पता नहीं वो राजा आपको कि वो राजा कौन था। उस राजा का नाम था सिकंदर। कि सिकंदर को किसी साधु ने सलाह दे दी थी कि अभी भी तेरी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो रही है, तू गरीब है, राजा होने के बाद भी तू भिखारी है, और इसीलिए ये मैं तुम्हें दे रहा हूं। तब सिकंदर को पता चला कि मेरे पास सब कुछ है फिर भी मैं जी नहीं सका, दूसरों का छीनने के लिए चला गया। और जब याद रखिए कि महत्वाकांक्षा छीन लेती है। अगर आपको कुछ महत्वाकांक्षा है तो आप दूसरों के अधिकार के ऊपर अतिक्रमण कर लेंगे, दूसरों के अधिकार को आप छीनेंगे। दूसरों के अधिकार को छीना यही महत्वाकांक्षा का एक लक्षण होता है। और आप देखिए कि सिकंदर जब गया तो उसके दोनों हाथ खाली थे। महत्वाकांक्षा बहुत थी, लेकिन जब वो चला गया तो दोनों हाथ खाली थे। वो कभी विश्व विजेता नहीं हो पाया। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि प्रेम हमें जीना सिखाता है, प्रेम हमें जीवन में सिद्धि दे देता है, लेकिन किसी वस्तु के, किसी व्यक्ति की और महत्वाकांक्षा के
संग में जब वो आ जाए, उसके आकर्षण में वो चला जाए, तो वह प्रेम वो अपवित्र बन जाता है, उसे स्वार्थ कहते हैं। प्रेम की अपवित्रता है स्वार्थ। अब देखिए कि महत्वाकांक्षा आपको ही चाहिए, आपके अलावा और कोई न हो, उसे स्वार्थ है, और वह प्रेम स्वार्थ बन जाता है। और जहां स्वार्थ बन जाए, तहां आपके अलावा किसी और के लिए जगह नहीं। आप देखिए, मैंने अगले गुरुवार को ही कहा था, पिछले गुरुवार को मैंने कहा था कि प्रेम स्व में हो, स्व यानी अपनी इच्छाओं में, अपने विचारों में, उसे स्व कहा जाता है। स्वयं में हो, उसका अर्थ है कि आपके शरीर के साथ जो जुड़े हैं उन संबंधों को स्वयं कहा जाता है, उसमें भी प्रेम हो सकता है। और एक प्रेम हो जाता है सर्वस्व में, जहां आप समाप्त हो जाते हैं। लेकिन स्वार्थ स्व और स्वयं में जीता है, और जहां आप स्व और स्वयं में जीने लगो, वहां आप इतना सोच लीजिए कि आप संकीर्ण हो जाते हो, आप सीमित हो जाते हो, आप बंधन में हो जाते हो। और इसीलिए स्वार्थ का कार्य क्षेत्र अपने आप तक सीमित रहता है। तो यह अपवित्र भावनाएं स्वार्थ हो जाती है। और जहां अपवित्र भावना, अपवित्र प्रेम जहां स्वार्थ हो जाए, वहां कलह पैदा होते हैं, वहां कंकास पैदा होते हैं, वहां सब कुछ पैदा हो जाता है। और इसीलिए हमें जीवन में हमारे प्रेम को ऊर्ध्व गति की ओर ले जाना है। हमारे प्रेम का गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए। आकर्षण हमारे द्वारा हो जाता है, हम आकर्षित होते हैं। गुरुत्वाकर्षण अपने से जो अधिक है वो हमें खींच लेता है। आत्मा से अधिक परमात्मा, शिष्य से अधिक गुरु है, भक्ति से अधिक भगवान है। भक्त जब भक्ति करे तो भगवान उसे खींच लेता है। शिष्य जब साधना और सेवा करे तो गुरु उसे खींच लेता है। और उसी प्रकार आत्मा जब देह की माया छोड़ दे तो परमात्मा उसे अपने पास खींच लेता है। लेकिन जहां स्वार्थ हो वहां स्व और स्वयं छूटते नहीं। जहां स्वार्थ हो वहां देह के बंधन छूटते नहीं। और इसीलिए कहा गया कि आकर्षण है देह में, आकर्षण है स्वयं में, आकर्षण है स्व में। और वो जब छूटता है या वो जब बंधन टूटता है, तब हमारा प्रेम परमात्मा, धर्म और कर्तव्य के प्रति गुरुत्वाकर्षित हो जाता है। अब देखिए, रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था कि गगन चढ़ई रज पवन पसंगा, कि धूल अगर पवन के संग में आ जाए तो वो गगन में जाके बसती है, गगन में जाके होती। गगन चढ़ई रज पवन पसंगा, कीचहि मिलहि नीच जल संगा, कि वही धूल जब पानी में मिलती है तो वो कीचड़ बनती है, जमीन पे रह जाती है। और कीचड़ किसी दूसरों को लग जाए तो उसको भी वह गंदा कर देता है। कीचड़ के साथ कोई रह नहीं सकता, उसे धोना पड़ता है। तो धूल अगर पवन के साथ उड़े तो गगन में बसती है, और वही धूल अगर नीचे की तरफ चली जाए, पानी में बह जाए, तो वो धूल कीचड़ बनती है। और वो कीचड़ दूसरों को जाके लग जाती है, और दूसरे भी कीचड़ को धो देते हैं। यानी कीचड़ को कोई अपने साथ नहीं रख सकता। तो पवन के संग में आने से वो गगन में घूमती है, पानी के संग में आने से कीचड़ बनती है। वैसे ही हमारा प्रेम नाशवंत की ओर आकर्षित हो जाए तो वो कीचड़ बन जाता है। व्यक्ति में मोह वो कीचड़ है, छूटेगा नहीं। और इसीलिए चाणक्य ने कहा था, हमारे भारत के राजनीतिज्ञ चाणक्य ने कहा था कि हमें जिससे प्रेम होता है वही भय का कारण है। हमें जिस व्यक्ति में प्रेम होता है वही भय का कारण, और भय ही मृत्यु का कारण है। इसीलिए व्यक्ति से प्रेम निकाल दिया जाए। ये चाणक्य की राजनीति। और इसलिए आप देखिए कि आप पार्श्व देश में चले जाएंगे तो वहां के राजा जब मरते थे
तो उस राजाओं की कब्र बनती थी, उसे मम्मी कहा जाता था। और जब राजा की डेड बॉडी उसमें रखी जाए तो उसके साथ उसकी प्रिय वस्तुएं भी रखी जाती थी। और ऐसे कहा जाता था कि राजा को अगर रानी प्रिय है तो रानियों को भी उसके साथ रख दिया जाता था, और एक पिरामिड बना जाता था जिसमें राजा को प्रिय वस्तुएं रखी जाती थी, राजा को जो प्रिय है वो खाने की वस्तुएं रखी जाती थी, और राजा को जो रानी प्रिय है वो रानी को भी उसके साथ रख दिया जाता था। और आज जब उसका संशोधन किया जाए तो उसमें से आप देखिए, जब वहां मम्मी निकलती है वहां आजू बाजू से वस्तुएं और वहां हाड़पिंजर भी निकलते हैं। और उसमें कहा गया है कि राजा को जो पसंद था वो राजा के साथ भेज दिया जाता था। आप सोचिए कि एक ऐसा कीचड़ है कि जिसमें आप अगर फंस गए तो मरने के बाद भी उससे आप नहीं छूटेंगे, आपके साथ किसी लोगों को आपके साथ मरना पड़ेगा। तो प्रेम जहां व्यक्ति में चला जाए, जहां वस्तु में चला जाए, जहां महत्वाकांक्षा में चला जाए, वहां स्वार्थ बन जाता है। और स्वार्थ, अपने जीने के लिए दूसरों को मार देना, उसका नाम होता है स्वार्थ। आज पूरी दुनिया स्वार्थ में रची है। और इसलिए खलील जिब्रान ने कहा है कि मानव सब जानते हैं, लेकिन एक संकीर्णता की एक सीमा खींच दी गई है। और संकीर्णता का सीमा यानी स्वार्थ की सीमा। और इसलिए कबीर जी ने कहा कि जहां मैं हूं वहां हरि नहीं, और जहां हरि है वहां मैं। और ऐसा जब कबीर जी ने कह दिया, उसका मतलब क्या है कि जहां आप हो, आपका स्वार्थ हो, आपकी माया हो, वहां भगवान नहीं रह सकते। लेकिन जहां सर्वस्व आ जाए, जहां भगवान आ जाए, वहां आप समाप्त हो जाते हो। यानी जहां मैं हूं वहां हरि नहीं, और जहां हरि है वहां मैं नहीं। व्यक्ति स्वार्थ में जीवन जीता है। स्वार्थ यानी खुद जीने के लिए दूसरों को मार देना, उसका अर्थ है स्वार्थ। आज आप देखिए, पहले एक परिवार में 4 व्यक्ति साथ में रहते थे, 4 भाई साथ में रहते थे, जैसे सब में प्रेम था, निष्काम प्रेम, सब एक साथ मिलके एक कुटुंब बना के, एक परिवार बना के रहते। एक परिवार जहां रहता हो उसे घर कहा जाता है, लेकिन आज वो घर मकान में बदल गया, क्योंकि जहां 4 रहते थे वहां चारों के बीच में जब स्वार्थ ने जन्म ले लिया, चारों के बीच में जहां महत्वाकांक्षा ने जन्म ले लिया, वस्तु के प्रति लोभ ने जन्म ले लिया, तब आप देखिए कि एक ही घर में 4 विभाग हो जाते। कई जगह पे पहले सब साथ में रहते, तब साथ में खाना खाते, लेकिन जहां एक घर में 4 दीवार बन जाए वहां अपने चूल्हे भी अलग हो जाते हैं। और वहां चूल्हे अलग हो जाते हैं, वहां एक दूसरे के साथ मिलना और एक दूसरे के साथ मिलना जुलना वहां खत्म हो जाता है। मैं कई जगह पे जाता हूं, वहां देखता हूं तो बंगले होते हैं 1, 2, 3 और 4। ये छोटी सी जगह में 4 माले हो जाते हैं। मैं पूछता हूं भाई 4 माले क्यों, 2 माले क्यों नहीं? कहा कहते हैं कि यहां नीचे हम माँ बाप रहते हैं, ऊपर पहला, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, उसके ऊपर चौथा, 4 अलग अलग रहते हैं। और उनके घर की जो सीढ़ी है वो घर से बाहर होती है। मैं कहता हूँ सीढ़ी को क्यों बाहर निकाल दिया? तो कहते हैं सीढ़ी को इसीलिए निकाल दिया कि किसी का एक दूसरे के साथ मेलजोल नहीं है। एक के घर में से दूसरा जाएगा तो झगड़ा होगा, इसीलिए झगड़ा खत्म करने के लिए बाहर से बाईपास रास्ता निकाल दिया है, सीढ़ी बना कि कोई एक दूसरे को देखे नहीं, कोई दूसरे के साथ मिले नहीं, जब चाहे जब आए, जब चाहे जब जाए। एक दिन रजा का होता है तब सब घर में होते हैं, लेकिन अपने अपने कमरे से कोई बाहर नहीं निकलता, और हम यहाँ नीचे बैठे हुए जीते हैं। और बीमार हो जाए तो फोन करते हैं, और अब तो मोबाइल आ गया है सबके पास, फोन कर देते हैं, उसके ऊपर ही खबर अंतर पूछ लेते हैं। आप देखिए कि कितने मनभेद, स्वार्थ में मनभेद और मतभेद हो जाते हैं। वहां एक ही जगह पे 4 बन जाते हैं। इसलिए कहते हैं ये 4 अलग अलग 4 क्यों बने, अलग अलग 4 घर क्यों बने? 4 एक ही घर में 4 दीवारें क्यों बन गई? तो कहते हैं दरार हो गई, और दरार की वजह से दीवार बन गई।
लेकिन ये दरार की वजह से कभी दीवार नहीं बनती। जब दीवार अलग हो जाती है तब दरार अपने आप बन जाती है। यानी मनभेद जब हो जाते हैं तब अपने आप घरों का विभाजन हो जाता है। और इसीलिए कहा गया है ये स्वार्थ वृत्ति है। आज हम सोशल डिस्टेंस की बात करते हैं, कि सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए। 2 महीने से सब सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं। कहीं भी जाओ तो थोड़ा दूर रहना, मुंह पे मास्क रखना, दूर खड़ा रहना, एक दूसरे से हाथ नहीं मिला सकते, एक दूसरे को गले नहीं लगा सकते, कोई स्पर्श ही नहीं रहा, हम बोलते हैं। लेकिन ये तो अब हम कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। वास्तव में तो हमने अपने अंदर ही डिस्टेंस बना लिया है। वर्षों पहले से सोशल डिस्टेंस बना था, आज फॉर्मेलिटी से हो रहा है, इसलिए हमें लग रहा है। बाकी रियलिटी में तो हम जी रहे थे। ऊंच नीच ये भी डिस्टेंस था, कि अलग जात का है, मैं उच्च जाति का हूं, ये नीच जाति का है। ये स्वार्थमय डिस्टेंस, संकीर्णता, सोशल डिस्टेंस, बे ऊंच नीच, बड़ा छोटा, अमीर गरीब, मैं अलग वर्ण का, ये अलग वर्ण का, ये मेरे धर्म का, ये दूसरे धर्म का, ये सब क्या था? ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये सब क्या था? ये डिस्टेंस में तो हम जीते ही थे। लेकिन अब जो डिस्टेंस हुआ है, अपने अपने में डिस्टेंस हो गया। ब्राह्मण और शूद्र में डिस्टेंस, कि शूद्र हो तो ब्राह्मण के घर में ना आ पाए, पानी देना हो तो दूसरे बर्तन में देगा। लेकिन अब जो हुआ है वो क्या हुआ है? अपने ही घर में डिस्टेंस बनाना पड़ता है। अपने ही घर में, अपने ही परिवार के साथ डिस्टेंस। जब अपने परिवार के साथ डिस्टेंस बना तब लोगों को पता चला कि ऐसे कैसे जिए। आप सोचिए कि जिस परमात्मा ने ये दुनिया बनाई थी और हमने जो डिस्टेंस बना दिए, उसमें परमात्मा ये दुख को देख के कैसे जिया होगा। आज हमारे बीच में जब डिस्टेंस बना, घर घर में जब डिस्टेंस बन गए हैं, तब हमें दुख होता है। तो उसको कितना दुख हुआ होगा कि सब जाति जाति में भेद बन गए, वर्ण वर्ण में भेद बन गए, अमीर गरीब में भेद बन गए। पूरा पोस्टमार्टम हुआ ये धर्म का। लेकिन आज जब हमारे साथ बीत रही है, तब हम सोचते हैं कैसे जिए। माँ बाप को हमने अलग कर दिया, वृद्धाश्रम बन गए। आज लोग वृद्धाश्रम में दान भी देते, हम भी खाना भेजते हैं वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम की प्रवृत्तियां भी चलती है। जहां राम ने अपने पिता के वचन के खातिर घर छोड़ दिया, उसी देश में अपने घर से माँ बाप को निकाला जाता है। ये हम कहाँ पहुंचे हैं? ये स्वार्थ, ये हमारा मोह, ये हमारी संकीर्णता, हमारा प्रेम अपवित्र हो चुका। हमने हमारे माँ बाप को बाहर भेज दिया। वृद्धाश्रम में जब माँ बाप चले जाए तो आप समझिए कि आप जीवन में कितना भी कमाओ, आपने सब गवा दिया। अपने माँ बाप को अपने साथ रखना है, उसी के द्वारा तो हम पैदा हुए, हमने उनसे डिस्टेंस किया। तो ये डिस्टेंस क्या है? आज सोशल डिस्टेंस अलग चीज है, मगर ये क्या है? ये तो हम जीते ही थे। लेकिन जब अपने पति और पत्नी में डिस्टेंस आज रखना पड़ रहा है, माँ बाप और बच्चों के बीच में एक ही घर में डिस्टेंस रखना पड़ रहा है, और तब हमें लगता है कि ऐसा डिस्टेंस क्यों रखा जाए। हमने जो किया था आज उसी का फल हम भुगत रहे हैं। तो मेरा कहने का एक तात्पर्य है कि स्वार्थ में जब चले जाओ तो वही स्वार्थ मोह बन जाता है, वही मोह स्वार्थ बन जाता है। लेकिन अगर हमारा प्रेम गुरुत्वाकर्षित होकर परमात्मा की ओर चला जाए, धर्म की ओर चला जाए, और वही प्रेम कर्तव्य की ओर चला जाए, तो वो प्रेम परमार्थ बन जाता है। और परमार्थ का अर्थ है परम अर्थ, किसी उद्देश्य के साथ जीना, वो है परम अर्थ। सर्वस्व के साथ जीना, वो है परम अर्थ। संकीर्णता को तोड़ते हुए स्वतंत्रता के साथ जीना, उसका अर्थ है परमार्थ। परमात्मा परमार्थ में बसते हैं, और जब परमात्मा परमार्थ में बसते हैं तो स्वाभाविक है कि हमारा गुरुत्वाकर्षण धर्म, कर्तव्य और परमात्मा के प्रति है। जहां आप परमात्मा के प्रति आपका गुरुत्वाकर्षण हो जाए, समझिए ये भक्ति है। धर्म के प्रति आपका गुरुत्वाकर्षण हो जाए, तब आप समझ लीजिए कि यह अनुष्ठान है। और कर्तव्य के प्रति आपका गुरुत्वाकर्षण हो जाए, तब समझ लीजिए कि यही आपका जीवन का उद्देश्य है।
तो प्रेम जब गुरुत्वाकर्षित हो वो परमार्थ बनता है। और मनुष्य का जीवन प्यार दो परमार्थ के लिए बना है। और परमार्थ जहां होता है वहां जीवन की व्याख्या होती है, वहां जीवन मिलता है। स्वार्थ जहां होता है वहां खुद का जीवन, दूसरों की मृत्यु। परमार्थ जहां होता है वहां जियो और जीने दो, दूसरों के जीवन के लिए पुरुषार्थ हो जाता है। और इसलिए आप देखिए कि परमात्मा सर्वस्व में जीता है। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने सेवा योग अपना लिया। गोरक्षनाथ ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय सेवा योग अपना लिया। भगवान श्री कृष्ण ने सेवा योग अपनाया कि मैं धर्म को जीवन दूंगा, अधर्म का नाश कर दूंगा, लेकिन मैं धर्म को जीवन दूंगा। और धर्म को जीवन देना यानी अधर्म का नाश हो जाना, तो मैं धर्म को जीवन दूंगा। और धर्म को जीवन यानी मानवता को मैं जीवन दूंगा। तो वहां परमार्थ की शुरुआत हुई। पूरी भागवत गीता परमार्थ के ऊपर आधारित है। आत्मोत्सर्गो भूतेषु, कि सब में परमात्मा देखिए और अपने कर्तव्य करे, तो सहजा सहज ये परमार्थ हो जाता है। इसलिए आप देख सकते हैं आज ये लॉकडाउन की परिस्थिति में भी कई कई जगह में कई कई संस्थाओं ने परमार्थ किया, कई कई धार्मिक संस्थाओं ने भी परमार्थ किया। कई संस्था ऐसी थी जिसने कुछ भी नहीं किया। लेकिन मैं मेरे स्वयं की बात करूं तो हमारे नवनाथ धाम ने बहुत परमार्थ किया, सेवा धर्म का आचरण किया। क्योंकि मेरा आकर गुरुत्वाकर्षण मेरे गुरु के प्रति था। और मेरे गुरु के वाक्य थे कि कुछ भी हो जाए, दो चीज बंद नहीं करनी है, एक प्रवचन नहीं बंद करना है और दूसरा प्रसाद बंद नहीं करना है। मैंने प्रवचन और प्रसाद दोनों चालू रखे। ये परमार्थ हुआ। गुरु के प्रति प्रेम, परमात्मा के प्रति प्रेम, मेरे धर्म के प्रति प्रेम। इस गादी के ऊपर बैठे हुए मेरा क्या धर्म बनता है? तो मेरा धर्म बनता है कि जहां कोई भूखा हो उसे मैं भूखा न रहने दूं, और वो प्रसाद हमने चालू किया। मेरे कर्तव्य के प्रति मेरा प्रेम, कि मेरे पास जो भी हो, मेरे पास जो भी धन हो, उसका उपयोग मेरे साथ साथ सभी के लिए होना चाहिए। और जो स्वामी विवेकानंद ने वाक्य किए थे, जो हमारे गुरुदेव ने जो वाक्य रखे थे, जो हमारी नाथ परंपरा जो आज तक चलती आई, उसी परंपरा को मैंने सेवा कार्य के रूप में जीवंत रखा। और इसीलिए कबीर जी ने भी कहा है कमाल, कि कबीर कहे कमाल को दो बाता सीख ले। कबीर कहे कमाल को दो बाता सीख ले, करने को हरि भजन है और भूखे को कुछ ले। हमने हरि भजन भी किया, हमने भूखों को भी दिया। और कबीर कहे कमाल, वही मेरे गुरु ने मुझे कहा, वही मैंने किया। और उसे कहा जाता है परम अर्थ। किसी उद्देश्य के पीछे अपने जीवन को बहा देना, और अपना जीवन जब बहे तब किसी का जीवन बन जाए, उसे कहा जाता है परमार्थ। कि पानी अपना जीवन वृक्ष के मूल में बहा दे, तब वो वृक्ष बड़ा होकर फल देने लगे, तो एक का जीवन बह जाए और उसमें दूसरों का जीवन बन जाए, उसे कहा जाता है परमार्थ। और वही परमार्थ में जो गुरुत्वाकर्षित हो जाए वो परमात्मा के प्रति, परमात्मा के हृदय में वो स्थान ले लेता है। और इसीलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि वस्तु, व्यक्ति और महत्वाकांक्षा में न जाते हुए परमात्मा, धर्म और कर्तव्य के प्रति आपका भाव रखिए। अगर ये भाव रहा, प्रेम आपका गुरुत्वाकर्षित होते रहा, तो वही प्रेम परमात्मा के हृदय में आपका स्थान बना लेगा। और इसीलिए ये स्थान बनना बहुत ही जरूरी है। यहाँ कहा ही है कि ईश्वर प्रति प्रेमोति श्रद्धायाय दर्शनात् प्रति ध्रुवम। ईश्वर के प्रति अगर आपकी प्रेम बढ़े तो वह श्रद्धा का दर्शन करवा देती है। हम सब में श्रद्धा है। आप ईश्वर को देखोगे कहाँ? अपनी श्रद्धा में। अपनी श्रद्धा में ईश्वर के दर्शन होते हैं।
जहां आपकी श्रद्धा हुई वहां दर्शन हो। अपनी श्रद्धा में ईश्वर के दर्शन होते हैं। इसलिए कहा श्रद्धा या दर्शनात् प्रति ध्रुवम, कि श्रद्धा में ईश्वर को देखो। ईश्वर को देखने की जगह ही श्रद्धा है। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि श्रद्धा क्या है। मन अगर दर्पण है तो श्रद्धा क्या है? तो मेरा मानना है श्रद्धा एक झरोखा है। श्रद्धा के झरोखे से अगर आप ईश्वर को देखोगे तो ईश्वर आपके पास ही आपको नजर आए। यानी श्रद्धा में दर्शन कीजिए। परमार्थ हुआ तो आपको परमेश्वर के दर्शन श्रद्धा में हो जाए। हम गाते हैं ना, अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सावरे, बड़ी दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। कि जब आप बाहर देखोगे, मन से बाहर देखोगे तो परमेश्वर दूर नजर आए। बंद करके झरोखों को जो मैं बैठी सोच दे, मन में तू ही मुस्काए, मन में तू ही मुस्काए। जब आप आंख बंद कर लो और श्रद्धा के साथ उसके दर्शन करो, श्रद्धा के झरोखे से, तो परमात्मा आपको आपके अंदर ही मिलेंगे। और जहां परमात्मा है वहां ही आपको प्रेम करना है। इसलिए बाहर मत देखिए, अंदर देखिए। अगर ये सोचेंगे तो हमारा हरिद्वार का सूत्र ईशावास्यम का याद आ जाएगा कि तदे जति तने जति तद अंतर तद अंतरे, तद अंतरस्य सर्वस्व तदु सर्वस्व बाह्यतः। कि परमात्मा चलता भी है और नहीं भी चलता है, परमात्मा दूर भी है और नजदीक भी है, परमात्मा अंदर भी है और बाहर भी है। तो कहाँ है परमात्मा? जहां आप हो वहां। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहां मैं खड़ा था वहां लेके आई। यानी ईश्वर के दर्शन परमार्थ में हो जाएंगे। और परमार्थ में अगर दर्शन हुए तो आपकी श्रद्धा में ही आपको ईश्वर दिखेंगे। तो यही प्रेम की व्याख्या है कि प्रेम क्या है। अपना जीवन जब दूसरों के लिए जीवन बन जाए उसे प्रेम कहते हैं, उसे ही परमात्मा कहते हैं, उसे धर्म कहते हैं, उसे कर्तव्य कहते हैं, उसे परमार्थ कहते हैं। तो हम सब मिल के सदगुरु के चरणों में प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, हमारा गुरुत्वाकर्षण आपके प्रति है। हमारा गुरुत्वाकर्षण हमारे इष्ट के प्रति है। हमारा गुरुत्वाकर्षण हमारे सदगुरु के प्रति है। हमारे भगवान ने जो धर्म दिया, हमारे गुरु ने जो धर्म दिया, उसके प्रति हमारा गुरुत्वाकर्षण है। हमारा कर्तव्य, हमारे जो भी कर्तव्य है उसके प्रति हमारा गुरुत्वाकर्षण है। हमारा प्रेम परमात्मा, धर्म और कर्तव्य के प्रति बह रहा है। ये सदा के लिए बहता जाए और इतना बहे कि हमारी श्रद्धा में ही हमें परमात्मा के दर्शन हो। तो जब मैं था तब हरि नहीं, पर हरि है तब मैं नहीं। अगर हमारे अंदर ही हमें परमात्मा के दर्शन हो जाए तो स्व और स्वयं नहीं, वो सर्वस्व में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए हम आप में है और आप में ही हम जीना चाहते हैं। हमारा प्रेम सदा आप में बना रहे। ऐसी 25 बार गुरु मंत्र बोलते हुए हम परमात्मा को प्रार्थना। गोरक्ष जालंधर चरपटाश्च अड़वंग कानीफमच्छेन्दराज्य चौरंगी रेवाणक भर्तुविसज्ञा भूम्याम्ब भुवन नवनाथ सिद्ध। जय जय मच्छेन्द्र समर्थ, जय जय मच्छेन्द्र समर्थ, जय जय मच्छेन्द्र समर्थ। साननाथ महाराज की।
आज की विचार गंगा प्रेम देवो भव, के प्रेम मेव परमेश्वर अस्ति, के प्रेम ही परमात्मा है, परमात्मा का स्वरूप है। हम सबको अपने घर में सबके साथ प्रेम से रहना है। हमारे नाथपंथी जो भी भाई बहन है उसके साथ प्रेम से रहना है, और प्रेम से हमें हमारे जीवन को जीना है, क्योंकि प्रेम लो और प्रेम दो, यही जीवन का नियम है जो स्वामी विवेकानंद हमें कह के गए। तो और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ सेवा यज्ञ किया। बहुत सुंदर रूप से हमें सेवा करने का अवसर मिला कि ऐसे समय में क्या करें। तो अंदर बैठा हुआ गोरख मेरा जागा, और वही गोरख ने प्रेरणा दी कि करने को हरि भजन है और भूखे को कुछ दे। तो फेसबुक के माध्यम से सत्संग भी होता रहा और भूखे के लिए प्रसाद भी पहुंचता रहा, और बहुत अच्छी सेवा हमारे नवनाथ धाम से सेवा योग के रूप में चली। 25/3 से 17/5 तक 49,800 એટલે કે 49,800 पैकेट, 50,000 गिन लीजिए आप, क्योंकि हमने भी खाना खाया, हम भी फूड पैकेट में ही आ जाते हैं। तो 50,000 जितने फूड पैकेट नवनाथ आश्रम से भूखों के पेट तक पहुंचे, और यह सेवा बहुत अच्छी अविरत चलती रही। लेकिन जैसे लॉकडाउन 4 में थोड़ी छूटछाट मिली, जो रास्ते पे सब बैठे हुए थे उनको भी काम करने का मौका मिला, थोड़े धंधे चालू हुए, थोड़े रोजगार चालू हुए। तो सभी हमारे साथ जितने भी ग्रुप जुड़े थे उन सब ने मिलकर एक निर्णय कर लिया कि अब अगर सब छूट छाट हुई है तो थोड़े समय के लिए ये सेवा को हम विराम देते हैं। अगर ऐसी परिस्थितियां बनी, परिस्थितियां वापस विकट हुई, तो यह सेवा वापस शुरू हो सकती है और शुरू करेंगे। लेकिन फिर भी उसी राह पर, उसी मोड़ पर हमने तो वो सेवा थोड़े समय के लिए बंद की है। लेकिन आप तो जानते हैं कि गुरुवार है, और गुरुवार को हमारा खाना फुटपाथ के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति को पिछले 18-20 सालों से पहुंच रहा है। तो वैसे ये सेवा बंद हुई, लेकिन गुरुवार के दिन ये सेवा चालू रहेगी, और हर शाम को फुटपाथ के ऊपर वृद्धाश्रम में जो भोजन पहुंचाया जाता है वो हमारे स्वयंसेवकों के द्वारा पहुंचाया जाए। तो उसी राह पर, उसी मोड़ पर हमारी गुरुवार की सेवाएं आगे बढ़ती गई है। आप सब ने भी बहुत सहकार दिया है। वो सहकार यहाँ आया है कि बिनार सत्संग मंडल की ओर से वापस एक बार गाय के लिए घास चारा आया। शांतुभाई वेलशी की ओर से 1 मन 1 टन 1.5 टन ईंधन के लिए, ऊर्जा के लिए लकड़ों की व्यवस्था की गई, वो भी यहाँ तक पहुंची। नवनाथ आश्रम में जो लड़कियां सेवा कर रही थी, स्वाति, रानी, हर्षिता, स्नेहा, धनेश्वरी, रामेश्वरी, तपेश्वरी, निराली, उनकी ओर से आश्रम के किचन में एक मिक्सर मशीन दिया गया। भरत दादावाला की ओर से चप्पल रखने के लिए पगरखा स्टैंड यहाँ एक नया लाया गया कि स्वच्छता अभियान, कि कोई आए और कहाँ कहाँ चप्पल रख दे। और अब तो जब जैसे जैसे जब खुलेगा स्वच्छता की और जरूरत पड़ेगी, तो स्टैंड की कमी थी चप्पल रखने का, तो वो स्टैंड उनकी ओर से यहाँ आश्रम को दिया गया। करचिलिया विभाग सत्संग मंडल 140 किलो गेहूं का लोट, 12 किलो तुअर की दाल, 28 किलो गेहूं, 15 किलो चावल, 19 किलो लीली हरी चौड़ी और 10 लीटर तिरुपति तेल उनकी ओर से सीधे अनाज के रूप में यहाँ लाया गया। तो जिन्होंने ये सीधा अन्नदान दिया है, वस्तुदान दिया है, उनके प्रति मेरी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ।
और परमात्मा को प्रार्थना करता हूं कि सब सुखी रहे, सुरक्षित रहे। यह हफ्ते में भी आर्थिक योगदान कई भक्तों ने भेजा है। बगुभाई परिवार अमेरिका, उनकी जो 4 लड़कियां हैं वो सब, उनका जो परिवार अमेरिका में रहते हैं वो सब, उन्होंने 1 लाख रुपए का ये सेवा कार्य में फूल और फूल की पंखुड़ी के रूप में सहायता की है, 1 लाख रुपए की। महेश्वरी चौहान यूके से 200 पाउंड यानी 18,000 रुपये का योगदान। स्वभानुबेन केशवभाई भगवाकर के स्मरण में सूरत से 11,000 रुपये। भूपेंद्र पवार दाहोद से 11,000 रुपये। स्नेहलता सुरती सरी गुजरन अमलसाड़ से 10,000 रुपये। मिलन चौधरी अफ्रीका से 10,000 रुपये। पार्वतीबेन अमृतभाई पटेल रानवेरी खुद से 10,000। अमृतभाई रानवेरी खुद से 10,000। विजयभाई सोनार उदना से 5,000 रुपये। हेमंत वड़गांवकर सूरत से 5,000। लताबेन चौधरी सूरत से 5,000। प्रज्ञाबेन चौधरी पाठकवाड़ी से 5,000। रागिणी मेहता सूरत से 5,000। बीना पाठक मुंबई से 5,000। उषाबेन पटेल आहवा से 5,000। प्रियेश कुमार राठौड़ बारडोली से 3,000। दुर्गेश सोनार सूरत 3,000। नीलाबेन दीपक भाई मिस्त्री बारडोली से 2,000। निराली टंडेल बिल्लीमोरा से 2,000। मीत पटेल मगल्ला से 1,100 रुपये। अनसुया भगिनी मंडल नवसारी से 1,100। कलकवा सत्संग मंडल 1,000 रुपये। सुमित्राबेन चौधरी नड़ादरा से 1,000। बालूभाई चौधरी नड़ादरा 111 रुपये। उर्मिलाबेन प्रभुभाई चौधरी नड़ादरा 110 रुपये। कुमुदबेन चौधरी नड़ादरा से 21 रुपये। श्री रंजीत भाई नागपुर से 1,500 रुपये। पार्वतीबेन डायाभाई पटेल डूंगरी से 10,000। श्री शिवाजी राजे भोसले पूना से 2,001 रुपया। तो आर्थिक रूप से भी जिन्होंने सहयोग दिया है उन सबके लिए भी मेरी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। परमात्मा आप सबको सुखी रखे, सुरक्षित रखे और आप सब प्रेम पूर्वक एक दूसरे के साथ अपने ही घर में रहे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। थोड़े समय के लिए ये सेवा स्थगित है, विराम दिया गया है। अगर और विकट परिस्थितियाँ रही और ऐसे हमें लगा कि ये सेवा चालू करनी है तो वापस हम ये सेवा योग चालू करेंगे। मगर भगवान की कृपा से नवनाथ धाम से बहुत ही अच्छी सेवा यहाँ हुई, अच्छा सहयोग भी सबसे प्राप्त हुआ। जो नाथ भक्तों ने सीधे अन्न के रूप में, सामग्री के रूप में अब तक और आर्थिक सहयोग के रूप में जिन जिन भक्तों ने सेवा यहाँ भेजी है, परमात्मा मैं इसकी नोंद लूँ न लूँ, लेकिन याद रखिए परमात्मा ने आप सबकी सेवा की नोंद ली है। और जहाँ परमात्मा नोंद ले यहाँ आप इतना जरूर याद रखिए कि आपकी सेवा का स्वीकार परमात्मा के धाम में हुआ है। तो जिन ने सेवा भेजी परमात्मा उन्हें सुरक्षित रख के प्रार्थना करता हूँ। ये कोरोना महामारी वायरस की बीमारी में एक बात इतनी निश्चित है कि हमारे सब भक्त सुरक्षित है और मुझे विश्वास है, श्रद्धा है कि हमारे सभी भक्त सुरक्षित रहेंगे। ये राष्ट्र भी ये महामारी से मुक्त होगा, ऐसा भी मुझे विश्वास है। तो हम सब घर में ही बैठे रहे। अभी और 15 दिन और 1-2 गुरुवार शायद हमें घर में बैठना पड़ेगा, तो हम सब घर में ही बैठे रहे, घर में बैठे ही भक्ति भाव करते रहे, सबके साथ मिलजुल के प्रेम से रहे और परमात्मा को प्रार्थना करें कि पूरा विश्व ये महामारी से मुक्त हो। आप सबके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ। तो श्री आज के लिए सिर्फ इतना ही। श्रीनाथ जी गुरु जी आदेश 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 अलग।